آج کا یہ وہابی، میں بولتا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ کسی کے رحم و کرم پہ میرا گھر نہیں چلتا ہے۔ آج کا وہابی اور کل کا منافق، تاریخ اٹھا کر دیکھو، دونوں میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آتا۔ جو بولی اس دور کے منافق کی نظر آتی ہے، وہی بولی آج کے وہابی کی مجھے نظر آتی ہے۔ میں ایک بولی بتاؤں آپ کو، اب سنیے، یہاں سے میں دکھا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں آپ کو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے تھے نا، تو حضور کا ایک معجزہ تھا، بڑا عظیم معجزہ تھا۔ وہ معجزہ دوسرے کسی نبی کو نہیں ملا، دوسرے نبی کو ملا لیکن اس درجے کا نہیں تھا جو اتم درجہ رسول کا تھا۔ کیا تھا وہ معجزہ؟ حضور جب کسی کافر سے گفتگو کرتے تو حضور کے الفاظوں کا اثر دل پہ ایسا پڑتا کہ وہ بے ساختہ کہتا کہ محمد جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کیا بات ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اس کی تاریخ میں بڑی مثالیں ہیں، بڑے بڑے فصیح و بلیغ خطبہ ہے، اپنے کلام انہوں نے سنایا اور چاہا کہ حضور کو ہم اپنے کلام سے سیر کر دے۔ آقا نے ان کی پوری بات سنی، جب اپنے کلام سنائیں گا لوگ اس کا کلام سنتے، جو ایک بار سن لیتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، تو کیسے محمد سے ہم لوگوں کو لوگ روکیں؟ مشورہ دو۔ ایک نے کہا کہ صاحب مشورہ یہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے محمد جادوگر ہے۔ ابو جہل نے اس رائے کو ٹھکرا دیا، کہا رائے میں دم نہیں ہے، کیونکہ محمد جس لباس کو زیب تن کرتے ہیں اس کو دیکھ کر ہی لوگ کہیں گے کہ یہ جادوگروں کا لباس ہے۔ محمد کے چہرے کا حسن جمال یہ ہے، جادوگر تو بڑے گندے رہتے ہیں، کئی کئی برسوں اور کئی کئی مہینوں نہاتے نہیں ہیں، محمد کا تو حال یہ ہے کہ اس کے چہرے کو جو دیکھ لیتا کہتا ہے ایسا حسین چہرہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جادوگروں کا چہرہ نہیں ہوتا۔ محمد تو پاکیزگی اور صاف صفائی کی بات کرتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ یہ ہر بار نہیں چلے گا، کچھ اور مشورہ۔ کسی نے کہا ہم کہہ دیں گے محمد کے پاس ایک جن آتا ہے اور وہ جن کچھ سکھا دیتا ہے، وہی محمد بڑبڑا کے سنا دیتا اور کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ ابو جہل نے کہا یہ بھی کام نہیں چلے گا، اگر جن کا کلام ہوتا تو ہم جواب لے آتے۔ محمد وہ کلام پڑھتا ہے، پھر کلام پڑھ کے کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اور یہ جو کچھ اللہ نے ہم اپنے محبوب پر نازل کیا، اگر یہ اللہ کی طرف سے نہیں، اس میں تمہیں شک اور شبہ ہو تو تم سارے مل کر اللہ کو چھوڑ کر ایک ہو جاؤ اور اس کے جیسی ایک صورت تو بنا لے آؤ۔ وہاں ہم عاجز آ جاتے ہیں، صورت تو بڑی بات ہے، ہم قرآن کے زیر اور زبر کے برابر بھی ایک حرف نہیں لا پاتے، یہ دلیل بھی نہیں چلیں گی، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ ولید ابن مغیرہ بڑی دیر تک سوچتا رہا، کہا ابو جہل یار دوست، ایک ذہن میں بات آئی، شاید تو پسند کرے۔ کہا بولو۔ کہا ہم یہ کہیں گے لوگوں کو کہ محمد مجنون اور پاگل ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ کام کی بات لگی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محمد ایک پاگل اور مجنون ہے، دیوانہ ہے، اور جو کچھ محمد کہتا ہے، دیکھیے کافروں کا جملہ سنیں، جو محمد کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ پاگل پن کی بات، جو بولتا ہے اس کا کلام پاگلوں کی طرح ہوتا ہے، ہم یہ کہیں گے تو لوگ شاید مان لے ہماری بات۔ مشورہ ہو گیا، بازار بھرا، میلہ بھرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بازار میں مجمع کو جمع کیا، کہا اے لوگوں ادھر آؤ، میری بات سنو، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قولوا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، تم سب گواہی دو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تبھی ولید ابن مغیرہ آگے بڑھا ولید، اور اس نے جملہ کہا جو تفاسیر میں، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں علماء نے، بزرگوں نے، محدثین نے، سب نے لکھا، اس نے کہا وما یدری محمد بالغیب۔ نہیں یہ نہیں، معاف کیجیے گا، میں دوسری بات کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذی انزل علیک الذکر انک لمجنون، کیا کہا اس نے؟ اے وہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے کہ اس پہ قرآن اتر رہا ہے، نہیں مگر جو تو کہتا ہے یہ ایک پاگل کی بات ہے، تو نیرا مجنون ہے، تو ایک پاگل ہے، انک لمجنون، تو پاگل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے سنے، سارے کفاروں نے بھی حامیہ ملائی اور سب چلانے لگے مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، پاگل ہے، شور برپا ہوا۔ اب اس شور میں رسول کی آواز دب کر رہ گئی، آقا کی آنکھوں میں چشمہ مبارک پیاس ہوا۔ اتنا بڑا تانا دیا انہوں نے مجھے، مجنون کہا، پاگل کہا مجھے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کو، میرے حبیب کے قلب کو تکلیف دی جائے، سورہ قلم نازل فرمایا، اور سورہ قلم کی آیت 1 سے 6 جس میں رب ارشاد فرماتا ہے نون، اور مقطعات، اس کے معنی اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह कहता है नून और कलम, कलम के और उसके लिखे की कसम, कसम कलम की और उसके लिखे की कसम। मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, ऐ मेरे महबूब तू अल्लाह के फजलो करम से हरगिज हरगिज मजनून और पागल नहीं। अल्लाह का तुझ पे फजल है, तू पागल नहीं है। ये झूठे हैं, ये मक्कार है जो तुझे पागल कहते हैं, तेरे कलाम को पागलपन की बात कहते हैं। व इन्ना लकल अजरन गैरा ममनून, और अल्लाह फरमाता है हबीब तेरे लिए तो बहुत बढ़कर बड़ा अजीम सवाब है। व इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, ऐ मेरे हबीब तेरा अखलाक, तेरा किरदार तो बहुत आला दर्जे का है। सुभान अल्लाह, तेरी खूबू, तेरी खासियतें, खुसूसियात तो बहुत आला दर्जे की है। तू पागल नहीं है मेरे हबीब, बल्कि हाल क्या है, फसा तुबसिरू व युबसिरून, और जो तुझे मजनून कह रहे हैं ना, अन करीब वो भी देख लेंगे और तू भी देख लेंगे। क्या देख लेंगे? बेअय्यम कुल मफ्तून, के कौन दीवाना और पागल। और अल्लाह ताला ने उसके बाद 10 ऐब गिनवाए। उसके बाद की फिर आयतें आई और उसमें किसके ऐब गिनवाए? वलीद इब्न मुगीरा के। कहा कि हबीब ये वलीद तुझे मजनून और पागल कहता है, खुद ऐबी है, खुद ऐबदार है। आज मैं हबीब बताता हूँ इसमें क्या क्या ऐब है। तो 10 ऐब गिनवाए गए। तो एक ऐब ये गिनवाया गया कि बखील है, बहुत ही बड़ा कंजूस है, लाई लगाई भी करता है, इधर की उधर करता है, फितना परवर है, लोगों से नेकी को, लोगों को जो है नेकी से रोकता है, भलाई से रोकने वाला, बहुत बड़ा तानेबाज है, लोगों को ताने भी मारता रहता है, हद से ज्यादा बढ़ने वाला है, इंतहाई गुनाहगार, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो ये करता नहीं, इंतहाई बद अखलाक है, इसका अखलाक भी गिरा हुआ है, किरदार भी गिरा हुआ है, बखील भी है। 9 ऐब जब बताए हुजूर ने, कुरान की आयतें नाज़िल होती रही, नबी उसके ऐब गिनवाते रहे, और हर ऐब पर वो मुस्कुरा के बेशर्म और बेहयाओं की तरह कहता रहा, सदका मोहम्मद, मोहम्मद आपने सच कहा। आप कह रहे हैं मैं बखील हूं, हाँ मैं बखील हूं। आप कहते हैं मैं हद से बढ़ने वाला हूं, आपका रब कह रहा है हाँ मैं हद से बढ़ने वाला हूं। आप कहते हैं मैं सख्त गुनाहगार हूं, हाँ मैं गुनाहगार हूं। आप कहते हैं मैं तानाबाज हूं, हाँ मैं तानाबाज हूं। आप कहते हैं मैं लाई लगाई करता हूं, हाँ मैं लाई लगाई करता हूं। हर ऐब पर वो तस्दीक करता रहा, और जैसा ही अल्लाह ने 10वां ऐब गिनवाया और 10वां ऐब आया, ओ तिल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन, और ऐ मेरे हबीब 10वां ऐब ये है कि इसकी असल में खता है, हरामी है, ये ओरिजिनल बाप की औलाद नहीं है, मशहूर बुगीरा से है, लेकिन इसका बाप मुगीरा है ही नहीं। ये चौंक गया पूरा अरब, तो मुझे मुगीरा का बेटा बोलता है, मोहम्मद आज बता रहे कि मेरा बाप मुगीरा ही नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तलवार निकाली और सीधा अपनी माँ के पास पहुंचा, माँ की गर्दन पे रखती। माँ घबरा गई, आज तेवर बिगड़े हुए क्यों है? कहा वलीद क्या बात है? कहा मेरा बाप कौन है बता, मेरा बाप कौन है बता। कहा बेटा तेरा बाप मुगीरा है, सारा अरब तो जानता है, तू भी जानता है, सब तुझे वलीद इब्न मुगीरा के नाम से पुकारते। कहा नहीं तू झूठ कहती है, खुदा की कसम, लात व हुबल की कसम, तू झूठी है, मोहम्मद झूठे नहीं हो सकते, मोहम्मद का रब झूठा नहीं, तू झूठ कहती है, मेरा बाप मुगीरा नहीं है, बता कौन है मेरा बाप। देखा कि अब तो तलवार लिए खड़ा हुआ है। कहा नहीं बताएंगे कत्ल कर दूंगा, सर्रा बराबर भी अगर तूने झूठ कहा ये तलवार चलेंगी, तेरा सर तन से जुदा हो जाएगा। घबरा गई कि नौबत यहां तक आ गई। कहा सुन बेटा, असल में मामला ये है कि तेरा बाप बड़ा पैसे वाला, बड़ी दौलत थी, मगर उसमें एक ऐब था कि वो औरत के काबिल ही नहीं था, औरत के काबिल नहीं था। अब मैंने सोचा मर जाएगा तो इतनी सारी दौलत सब भतीजे ले उड़ेंगे, तो मैंने एक चरावे से मुंह काला किया, उससे तू पैदा हुआ। मोहम्मद सच कहते तेरा बाप मुगीरा नहीं है। तो कुरान ने क्या बताया यहाँ? कुरान कह रहा, मैं तो नहीं कह रहा। तो जितने पिलपिले हैं उनको चाहिए कि सूरह कलम पढ़ना बंद कर दे। कहे साहब ये अल्लाह तो तफरीक की बात कर रहा है, बांटने की बात कर रहा है। अरे उसका ऐब छुपा हुआ था, पूरा अरब नहीं जानता था सिवाय अल्लाह के और सिवाय उसकी माँ के और उस चरावे के जिसने मुंह काला किया था। 3 राजदार थे, अल्लाह ने अपने हबीब को भी राजदार बना दिया और हबीब के जरिए पूरे अरब पर जाहिर कर दिया हरामी है। तो हरामी क्यों है? अल्लाह ने कहा देखो मेरे हबीब की शान में जब तक गुस्ताखी नहीं किया था, ऐब मैंने दबा कर रखे थे। जब मेरे हबीब की शान में गुस्ताखी किया, ऐब जाहिर कर दिया, तो अल्लाह ने बता दिया सुन्नियों तुम्हारे रसूल को कोई ना छेड़े तो तुम्हें भी जरूरत नहीं है कि उसके बारे में कुछ जबान दराजी करो, मगर जब तुम्हारे रसूल की शान में अदना से भी गुस्ताखी करो तो सुन्नत इलाहिया ये है कि उसे बता दो तू हलाली नहीं है, हरामी है।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस। तो कुरान पढ़ना बंद करो ना। सबसे पहले सबसे ज्यादा तफरीक उसी में। सूरह काफिरून कुरान से निकालो, हिम्मत हो तो सूरह मुनाफिकून कुरान से निकालो, हिम्मत है तो अबू जहल के तस्करे उसमें से निकालो, हिम्मत है तो वलीद इब्न मुगीरा के तस्करे निकालो। कितना कुरान निकालोगे? निकालते निकालते थक जाओगे तो रब ये इरशाद फरमाएगा, हल यस्तवी अस्हाबुन नारे अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुल जन्नत हुमुल फाइजून। क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? हरगिज नहीं हो सकते। जो जन्नत वाले वही कामयाबी को पहुंचे। अरे पिलपिलो, तुम कितना ही बोलो कि हम सबको एक लेकर चलेंगे, खुदा कहेगा एक रहने की मैंने जगह बनाई नहीं, मैंने दो जगह बनाई है। सुन्नियों के लिए जन्नत बनाई है, गद्दारों के लिए जहन्नम बनाई है। क्या बात है, क्या बात है। एक जगह ऐसी बनाई ही नहीं है जहां तुम सब रह सको, और तू सबको एक जगह लेके चलेगा। क्या बात है। अभी तो आप किसका कलाम सुन रहे थे? रब का। तब क्या रब का भी तफरीक कर रहा है? आओ रसूल क्या कर रहे हैं, मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ताकि इल्जाम ही ना लगे मुझ पे कि फारूक रजवी साहब आप अपनी मनमानी कर रहे थे। मेरे प्रोग्राम से ज्यादा, मुझसे ज्यादा मेरे लैपटॉप से वहां भी इसीलिए डरते हैं। मेरा नाम भी बड़ा अच्छा रखा है, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई वहां भी नाम कहता है, लैपटॉप वाले बाबा। हाँ, मेरा नाम है इंटरनेट पर। मैंने तो इनको मुझसे ज्यादा मेरे लैपटॉप से प्रॉब्लम है। और ये बेचारे लैपटॉप ने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी वहां भी को इतना नंगा करूंगा। ये भी सुन्नी है, टन टनाटन बरेलवी है ये। अब आइए देखिए, ये अभी आपने अल्लाह का कलाम सुना, अब जरा रसूल का कलाम सुन लो। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो रसूल कह रहे हैं ना। आइए देखिए क्या है ये है शोएबुल ईमान। स्क्रीन पे लाइव जरा दिखाएं, दिख रही है आपको? हदीस की किताब है। इन वहाबियों के मदारिसों में भी किताबें रखी हुई है, देवबंदियों क्या भी है, अहले हदीसों क्या भी है। वहाबी किताबें सजा के रखता है, पढ़ता नहीं, पढ़ ले तो बताता नहीं। क्या बात है। और हम सुन्नियों का हाल क्या है? हम कहते हैं किताब छप गई है तो छुपाओ नहीं, छप गई है तो छुपाओ नहीं, और जब नबी ने बता दिया है तो फिर तुम खामोश रहो नहीं। शोएबुल इमाम, इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब है, बहुत बड़े मुहद्दिस है। फिर इस हदीस को और भी उलमा ने लिखा, मैं हवाले और भी दूंगा आपको। शोएबुल ईमान जिल्द नंबर इसकी 3 है, सफ़ा नंबर 162 है, और हदीस नंबर 1500 है। और रावी कौन है इस हदीस के? आप नाम सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप सुभान अल्लाह कहेंगे। रावी नबी के घर वाला है, घर की बात बता रहा है, और वो है मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा, हज़रत अली रावी है। तो इमाम बहकी रिवायत करते कहते हैं, अन अलीन काला समीतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, कहते हैं हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को ये कहते हुए सुना। किसको कहते हुए सुना? और रसूल अली कह रहे हैं, मैंने रसूलुल्लाह को कहते हुए सुना कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया। आका ने क्या इरशाद फरमाया? मदलम यारिफ हक्का इतरती वल अंसारी वल अरब फवाले अहदी सलास। आका ने कहा, लोगों जो मेरे अहले बैत की ताजीम ना करे, मेरी इतरत का हक ना पहचाने, मेरे सहाबा का मकाम ना जाने, मेरे अंसार के सहाबा के हक को ना समझे, वो 3 हाल से खाली नहीं, 3 में से एक जरूर है। वो 3 है, चौथा हो ही नहीं सकता। जो मेरे सहाबा की ताजीम ना करे, मेरी इज्जत ना करे, मेरे अंसार के सहाबा की इज्जत ना करे, मेरे अरब के सहाबा का हक ना पहचाने, वो 3 में से एक है, 3 से खाली नहीं। वो क्या है? इम्मा मुनाफिक, या तो पक्का मुनाफिक है, चाहे वो अपने आप को कितना ही पक्का मुसलमान समझ रहा हो, लेकिन अगर मेरे अहले बैत की ताजीम नहीं करता, मेरे सहाबा का अदब नहीं जानता, तौहीन करता है, तौहीनों को पसंद करता है, तो पहला या तो वो मुनाफिक है। व इम्मा ज़िना, या तो जिना से पैदा हुआ हरामी है, उसकी पैदाइश जिना से हुई, माँ ने बदकारी की तब पैदा हुआ वो। और या तो तीसरा भी आगा फरमाते व इम्मा लिगैर तहूरिन आई हमलतु अम्महु अला गैर तहूर, या तो फिर वो इस हाल में है कि उसकी माँ जब हालत नापाकी में थी, उसके बाप ने उसकी माँ से मुबाशरत की, जो हमल ठहरा ये वही हमल से है। हदीस यहाँ मुकम्मल हो गई। कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं कि बरेली के मौलाना कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह कह रहे हैं? रसूलुल्लाह कह रहे हैं। हुजूर तो वाज़े कह रहे हैं कि हक और नाहक कभी एक हो नहीं सकते। आका कह रहे जो मेरी इज्जत ना करे, मेरे अहले बैत का हक ना जाने, मेरे सहाबा की ताजीम को ना पहचान सके, मेरे अंसार के सहाबा की इज्जत ना करे, वो 3 हाल में से एक खाली नहीं, 3 में से एक जरूर है, या मुनाफिक है, या हरामी है,
या हालत नापाकी में पैदा हुआ है, हमल उसका ठहरा हुआ है। अब इसको इमाम बहकी के अलावा और कितने लोगों ने लिखा? इमाम इब्ने अदी ने अल कामिल में लिखा, जिल 4 सफ़ा 155 और इसके रिजाल नंबर 700। इसी हदीस को इमाम तैलमी ने भी लिखा, मुस्तदल फिरदौस जिल 4 सफ़ा 148 रिजाल नंबर 3027 पर। और इसी हदीस को इमाम ज़हबी ने भी लिखा मीज़ानुल इत्तिदाल के अंदर, और भी मुतअद्दिद उलमा ने लिखा। तो बहरहाल ये हदीस हमें बता रही है कि नबी की शान में, अहले बैत की शान में, अभी तो हम नबी की बात कर रहे थे, नबी ने अब अहले बैत को भी शामिल कर लिया अपनी इज्जत के साथ, अपने सहाबा को भी शामिल किया। कहा सिर्फ मेरी ही गुस्ताखी करने वाला नहीं, जो मेरे अहले बैत की भी गुस्ताखी करे तो हरामी है, जो मेरे सहाबा की भी गुस्ताखी करे वो भी हरामी है। तो अब ये तफरीक की बात कौन कर रहा है? अगर तुम इसको तफरीक कहते हो, खुदा की कसम ये तफरीक नहीं है। अच्छों को बातिल से, गंदों से जुदा करना ये इंसाफ का तकाजा। लेकिन मैंने अर्ज किया था स्टार्टिंग में एक जुमले पे, आपने शायद गौर नहीं किया था, कि कल का जो मुनाफिक बोलता था आज का वही मुनाफिक वही बोलता है। वलीद इब्ने मुगीरा ने क्या कहा था, जिसके बारे में पूरी आयत उतर गई, सूरह कलम की चंद आयतें आई और जिसमें कहा कि ये इसकी असल में खता है। उसने कहा था मोहम्मद क्या है, बोलो मजनून है, मां। और वही बोली आज के एक मुनाफिक ने बोली। ये है छोटी सी किताब, नाम पढ़ पा रहे हैं आप इसका? सामने वाले पढ़ पा रहे होंगे। किताब का नाम है हिफ्जुल ईमान। किसने लिखी? मौलवी अशरफ अली थानवी साहब ने। मौलवी अशरफ अली थानवी देवबंद के बहुत बड़े अल्लामा समझे जाते हैं, हकीमुल उम्मत कहलाते हैं। किताब तो आज भी छाप रहे हो तुम, आज भी इस किताब का दिफा करते हो। और जब हम अपनी कौम को बताए कि इस जमात से, इसलिए बच्चों की जमात का जो गुरु घंटाल है उसका ये अकीदा है, और इस अकीदे की बुनियाद पर ये जहन्नम में जाने वाला है, इसकी असल में खता है हदीस के मुताबिक, तो आप कहते हैं कि आप तफरीक की बात कर रहे हो। तो हम तफरीक की बात नहीं कर रहे, खुदा की कसम हम अल्लाह रसूल की बात पेश कर रहे हैं। अब इस किताब में एक सवाल हुआ मौलाना अशरफ अली से कि रसूलुल्लाह को इल्म जो है, हुजूर को जो इल्म गैब है वो अताई है, और हमारा भी यही अकीदा है कि हुजूर को जो अल्लाह ने इल्म गैब दिया वो कैसा है? अताई है, जाती नहीं है। जाती इल्म किसका है? अल्लाह का। जाती यानी उसका अपना इल्म है, उसको किसी ने सिखाया नहीं। कोई ऐसी हस्ती है जो अल्लाह को पढ़ाए? नहीं। लेकिन रसूल को अल्लाह ने पढ़ाया। हुजूर का इल्म अल्लाह की अता से। थानवी साहब से सवाल हुआ कि एक शख्स है, जैद है, और वो जैद जो शख्स है वो ये कहता है कि मैं रसूल का इल्म अताई मानता हूँ और अल्लाह का इल्म जाती मानता हूँ, इसमें आपकी क्या राय है? तो थानवी साहब सफ़ा नंबर 15 पर लिखते हैं इस किताब में कि अगर जैद का ये जुमला सही है, और अगर वो कहता है कि रसूल को इल्म जो है वो अताई है और जाती नहीं है, तो जब अताई है तो इसमें हुजूर ही की क्या तखसीस, हुजूर की क्या खासियत? जैसा इल्म रसूल को है ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है। जैसा इल्म मोहम्मद को वैसा ही इल्म मजनून पागलों को भी है। तो कल वलीद इब्ने मुगीरा नबी को मजनून कह रहा था, और आज का वहाबी नबी के इल्म को पागलों का इल्म कह रहा है। बोली दोनों की एक ही है। तो कल अल्लाह ने दिफा किया था अपने हबीब का, अब कुरान का नुज़ूल बंद हो गया, तो ये अल्लाह के रसूल के गुलामों की जिम्मेदारी है कि अब हमला हो तो दिफा हम करें, बेशक कुरान और हदीस की रोशनी में करें। का नबी को इल्म गैब है ही नहीं, और जो अगर है भी तो इसमें हुजूर का क्या कमाल? जैसा इल्म नबी को है ऐसा इल्म तो जानवर को भी है, ऐसा इल्म पागलों को भी है, बल्कि पागलों को ही नहीं, आगे लिखते हैं कि जमीए हैवानात व बाहिम को हासिल है। हर 4 पैर के चलने वाले कीड़े मकोड़े, हर जानवर को ऐसा इल्म है जैसा इल्म नबी। क्या ऐसा ही इल्म है नबी को और इनको? ये नबी के इल्म की तौहीन नहीं है, ये नबी के इल्म को अता करने वाले की तौहीन नहीं है। अरे भाई, आप एक डॉक्टर को कहे कि डॉक्टर साहब क्या डॉक्टर की डिग्री लगा रखी है, लिखा रखा है आपने डॉक्टर फुला MBBS, जो डॉक्टरी आपने पढ़ी है ऐसी तो चमार को भी ऐसी इल्म है, गधे को भी ऐसी इल्म है, कुत्ते को भी ऐसी इल्म है, वो डॉक्टर जूता नहीं मारेंगे आप। ये बोली थी किनकी? पहले के मुनाफिक। एक और बोली मैं बताता हूं मुनाफिकों की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं और साथ में सहाबा की भी जमात है, तो सहाबा के साथ मुनाफिकीन भी हो जाते थे साथ में। मुनाफिक कौन सा तबका था? ये हुजूर के जमाने में एक ऐसा तबका था जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ता था, नमाज नहीं छोड़ता था, नमाज के बड़े पाबंद होते हैं बेचारे। नबी के पीछे नमाज पढ़ता था, मस्जिद नबी में नमाज पढ़ता था, लेकिन आदत क्या थी? हुजूर के पीछे नमाज भी पढ़ी, हुजूर की मजलिस में भी बैठे हैं, हुजूर की गुफ्तगू भी सुन रहे हैं, हुजूर के साथ जंग पर भी जा रहे हैं, और जैसी मौका मिला थोड़े से 2-4 आपस में जमा हुए, रसूल की ग़ीबत चालू कर दी।
हुजूर की बुराइयाँ, हुजूर ने ये मोहम्मद ने ऐसा नहीं कहना था, मोहम्मद ने ये गलत कहा, मोहम्मद को ऐसा कहने का हक नहीं, ये चूचा चीचा करते थे। और सहाबा कराम की कुरान क्या तारीफ करता है, सहाबा वो थे रसूल के ऐसे गुलाम थे, समीना व अताना, हमने सुना और इताअत की। हमें इससे गरज नहीं कि अभी आप कह क्या रहे हो, बस हमने सुन लिया और इताअत कर दी। ये सहाबा की शान थी। तो एक सफर में मुनाफिकीन भी है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी गुम हो गई, सरकार की ऊँटनी गुम हो गई। तो आका ने फरमाया जाओ मेरी ऊँटनी को तलाश करो। सहाबा से कहा जाओ ऊँटनी तलाश करो। तो ये मुनाफिकों को मौका मिल गया, ये एक जगह जमा हुए और जमा होकर आपस में हंसने लगे, हंसी मजाक करने लगे और मजाक उड़ाते हुए कहते देखो मोहम्मद भी कितनी अजीब बात करते हैं। एक तरफ मोहम्मद कहता है कि मैं आसमान की खबरें जानता हूँ, जन्नत भी देख रहा हूँ, जन्नत के अंगूरों को भी मैं देख लेता हूँ, जन्नत के फरिश्ते हूरों को भी मैं देखता हूँ, जन्नतियों को भी मैं देखता हूँ, जहन्नम को भी मैं देखता हूँ, तहतुस्सरा में भी मैं देख लेता हूँ, तमाम फरिश्ते मुझे नजर आते हैं, खुदा से मैं बातचीत और कलाम भी करता हूँ। मोहम्मद ऐसे ऐसे दावे करता है कि सब मुझे मालूम, मगर कितनी अजीब बात है, मोहम्मद को नहीं मालूम तो यही नहीं मालूम कि ऊँटनी कहाँ है। अरे जो अपनी ऊँटनी ना बता सके वो क्या गैब जानता है। और फिर उनका जुमला क्या था, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब का इल्म हरगिज नहीं। वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब नहीं जानते। आज का वहाबी भी वही बोली बोल रहा है, हुजूर को अगर इल्म गैब होता तो हजरत आयशा का हार गुम हो गया तो क्यों नहीं बता दिया, हुजूर को इल्म गैब होता हजरत आयशा पे तोहमत लगी तो क्यों नहीं बता दिया गया। एक सहाबा की जमात को आपने तबलीग के लिए भेजा, उनको रास्ते में ही दुश्मनों ने शहीद कर दिया, हुजूर को गैब होता तो भेजा क्यों, जाने क्यों देते, मालूम नहीं होता हुजूर को आगे जाके शहीद कर दिए जाएंगे। अगर हुजूर को मालूम होता तो ये क्यों नहीं कहा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ। जो आज का वहाबी बोली बोल रहा है वही कल का काफिर और मुनाफिक बोली बोलता था कि अगर मोहम्मद को गैब होता, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद अगर गैब जानते तो अपनी ऊँटनी की खबर नहीं देते। ऊँटनी ढूंढवा रहे, जाओ ढूंढो। तो कुछ सहाबा ने उनकी इस बात को सुन लिया और हुजूर की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के नबी वो आपके इल्म गैब पर एतराज करते हैं और कहते हैं आपको गैब नहीं मालूम, आप छुपी हुई चीजों को नहीं जानते। और हुजूर वो मजाक उड़ा रहे हैं, सरकार के चेहरे पे जलाल आया। इरशाद फरमाया बुला के लाओ ज़ैद इब्न अरकम गए, बुला के लाया, चलो हुजूर बुला रहे हैं। वो आए, हुजूर जलाल की कैफियत में इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा के साथ जाओ। और तुम क्या ये समझते हो कि अल्लाह ने मुझे गैब अता नहीं किया? खुदा की कसम मेरी ऊँटनी कहाँ है मैं वो भी जानता हूँ, क्या कर रही है वो भी जानता हूँ। अगर मैं कहता हूँ तलाश करो, कोई काम मैं तुम्हें देता हूँ तो इसमें मेरी हिकमतें होती है, अल्लाह की कुछ मर्जी होती है। अब तुम कहते हो कि मुझे इल्म गैब नहीं, तो ऐ मेरे सहाबी जाओ इन मुनाफिकों को साथ ले जाओ और देखो फुला झाड़ियों में, फुला वादियों में एक झाड़ी है, उन झाड़ियों के बीच मेरी ऊँटनी और वो झाड़ियों को खा रही है। जगह भी बता दी, ऊँटनी क्या काम कर रही है वो भी बता दिया। अब साहबा गए, जाने के बाद देखा तो उस वादी में वो ऊँटनी भी थी, झाड़ियाँ भी थी और वो झाड़ियाँ खाने में मशगूल थी। साहबा ने लगाम पकड़ा ऊँटनी की, ले आए और उसके बाद साहबा ने कहा बदबख्त तो शर्म करो, तुम्हें शर्म नहीं आती, तौबा कर लो रसूल की बारगाह में। तुमने क्या कहा था, वमा युद्री मोहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद गैब नहीं जानते। देखो हमारे आका गैब जानते, तभी तो ऊँटनी की खबर दी है ना, तभी बताया है ना क्या कर रही है, तौबा कर लो। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मुनाफिक की तौबा जो है तौफीक ही नहीं मिलती ना, वहाबी को तौफीक नहीं मिलती, मुनाफिक को भी तौफीक नहीं मिलती। तो उन्होंने कहा तौबा की क्या बात है, हमने कोई संजीदगी के थोड़ी कहा था, हमने तो हंसी मजाक में कहा था, मजाक में बोल दिया था। हमें हज़रत अनस कहते हैं काला नसुन फाक्सरन नासुल वका, सहाबा इकराम ने जैसे सुना तो धाड़े मार मार कर रोने लगे। हुजूर के जलाल की ताब नहीं थी उनमें, वो रोने लगे। वअक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकूला सलूनी, और हुजूर बार बार फरमाते रहे, साहबा रो रहे हैं, पूरी मस्जिद में कोहराम मच गया, आवाजें रोने की बुलंद हुई और रसूलुल्लाह बार बार कहते रहे, वाक्सरा, हुजूर बार बार फरमाते रहे, अक्सर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यकूला सलूनी, हुजूर बार बार कहते रहे पूछो मुझसे, पूछो मुझसे। अब जब मैं कह रहा हूं तो पूछते क्यों नहीं हो, एतराज करते हो कि मुझे अल्लाह ने गैब नहीं दिया, इल्म नहीं दिया। अब मैं कह रहा हूं पूछो, क्या पूछना है तुम्हें, जिस चीज के बारे में पूछोगे मैं तुम्हें जवाब दूंगा। फकाल अनसुन फकामा इलैहि रजुलुन फकाल, तभी एक शख्स हिम्मत करके खड़ा हुआ, कहा चलो मैं पूछ लेता हूं। अब अंदाजा लगाइए ऐसे वक्त हिम्मत कौन करेगा, तसव्वुर करो, साहबा तो रो रहे हैं, हुजूर के जलाल किताब नहीं तो उठा कौन, वहाबियों का सरगना। तो एक शख्स उठा और फकाल, उसने कहा ऐना मदखली या रसूल अल्लाह,
اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کہاں ہے بتا دیجیے, کہاں جانے والا ہوں, میرا انجام کہاں ہے, میرا ڈی اینڈ کہاں ہوں گا؟ قال النار, کہا تو پکا جہنم میں. آقا نے کہا تو جہنم میں جائیں گا. اس نے اعتراض نہیں کیا محمد دلیل دو, وہ جانتا تھا محمد کی زبان سے جو لفظ نکلتے پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے, آقا کے جملے نہیں مٹ سکتے. بے شک بیٹھ گیا, میری اوقات مجھے پتہ چل گئی. اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ امت میں سے کون جنت میں جانے والا ہے, کون جہنم میں جانے والا ہے, میں یہ بھی جانتا ہوں, سب مجھے معلوم ہے. فقام عبداللہ ابن حذافہ فقال, عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے. عبداللہ نام کے صحابی تھے, ان کے والد کا نام تھا حذافہ, اور ان کے بارے میں منافقین پروپیگنڈا کرتے تھے. ان کے بارے میں ایک تہمت لگا دی تھی, اور تہمت یہ لگائی تھی کہ عبداللہ کی ماں نے معاذ اللہ استغفر اللہ بدکاری کی, تو یہ بدکاری کے نتیجے میں عبداللہ پیدا ہوئے, لہٰذا یہ حلالی نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ جو صحابی تھے, انہوں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے پوچھو مجھ سے, تو کیوں نہ میں آج اپنے باپ کے بارے میں پوچھ لوں. اب یا تو یہ ہوگا کہ آج طے ہو جائے گا کہ میرا باپ اوریجنل کون ہے, یا یہ طے ہو جائے گا کہ میں صحیح النسب ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کھڑے ہوئے, فقال من ابی یا رسول اللہ, اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے, مجھے اپنے باپ کی خبر دیجئے. لوگ تہمتیں لگاتے ہیں آقا مجھ پہ, آپ تو سب کچھ جانتے, آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا حذافہ, آقا نے کہا سن تیرا باپ حذافہ ہی ہے, تو صحیح النسب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ تو غدار نہیں ہے نا. تو حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس عورت نے کس مرد کے ساتھ کب رات گزاری, کب حاملہ ہوئی, کس کے نطفے سے حاملہ ہوئی. اس وقت ڈی این اے مشین نہیں تھی, لیکن مصطفیٰ کی آنکھیں ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بھی بتا رہی ہیں کہ کون صحیح النسب ہے اور کون حرامی ہے. کہا تو حذافہ کا بیٹا ہے, تو صحیح النسب ہے. قال ثم اکثر ان یقول سلونی سلونی, پھر آپ نے بار بار کہا پوچھو مجھ سے, پوچھو مجھ سے. پوچھتے کیوں نہیں ہو, جب تم نے مجھ پہ میرے علم پر اعتراض کیا, اب جب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ پوچھو, تو پھر میرے کہنے پر پوچھ کیوں نہیں رہے. اب کسی کی ہمت رہی ہوئی, اور حضور کے جلال کو دیکھ کے صحابہ کی کیفیت بگڑ گئی. تو حضرت عمر نے جرأت کی تھوڑی سی, اور پھر کیا کیا, فبرک عمر علی رکبتہ فقال, تو حضرت عمر حضور کے قریب آئے, اور کس طرح سے آئے, راوی حدیث انس کہتے علی رکبتہ, جیسے چھوٹا دودھ پیتا بچہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آتا. پیروں سے چل کر نہیں آئے, اٹھ کر نہیں آئے, جھک کر نہیں آئے, گھٹنوں کے بل, ہاتھ اور پیر زمین پر بڑھاتے ہوئے جیسے دودھ پیتا بچہ آتا ہے, اس طرح چلتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے. حضور کے قدموں سے لپٹ گئے, سرکار کے قدموں کو پکڑ لیا. آقا منبر پہ بیٹھے ہیں, حضور کے قدموں میں بچے کی طرح آتے ہیں, پکڑ کے کہتے ہیں فقال رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے جلال کو ختم کر دیجئے, ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر, ہم راضی ہے اسلام کے دین ہونے پر, ہم راضی ہے کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں. ہم نہیں کرتے حضور, ہم اسلام میں شک نہیں کرتے, ہم اللہ کے رب ہونے پہ شک نہیں کرتے, ہم اس پر راضی کہ اللہ ہمارا رب ہے, ہم راضی کہ اسلام ہمارا دین ہے, ہم اس پر راضی برضا کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہے. قال فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حين قال عمر ذلك. انس بن مالک کہتے جب حضرت عمر نے یہ عاجزی کی, خوشامد کی, تب رسول اللہ کا جلال ختم. یہ حدیث سے کیا علم غیب واضح نہیں سمجھ میں, ہاں. اس کے بعد بھی وہاں بڑا بولتا ہے علم غیب نہیں, اور آپ ہی کے علاقے کا ایک بدبودار سڑا ہوا گدھا الو پاجی, وہ بولتا ہے محمد کا علم تو سڑا ہوا علم ہے. معاذ اللہ. آپ تک تو آئی ہوں گی نا یہ بات, محمد کے اتنے سے اس سڑے ہوئے علم کو تم علم غیب کہتے ہو. ابے جاہل, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرے کے برابر بھی اگر علم کا حصہ لیا جائے اور پوری کائنات کے علم کو ایک پلے پہ رکھ دیا جائے, تو حضور کے ایک قطرے کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا.